बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन पर एनिमेटेड स्लाइड्स किस तरह से बनाई जा सकती हैं और प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो किस तरह से बनाया जा सकता है और प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलावा बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन में हम साउंड किस तरह से, ऑडियो किस तरह से ऐड कर सकते हैं या पीछे जो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। स्टोरी है द प्राइसलेस स्टोन, राइटर का नेम है जेम्स रिवायर। तो द प्राइसलेस स्टोन की जो स्टोरी है ये एनिमेटेड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखें और नोट करें कि किस तरह की एनिमेशन स्लाइड्स में लगी हुई हैं, फिर मैं आपको उसका मेथड बताऊंगी ताकि आप उस तरह की एनिमेशंस अपनी स्लाइड्स में यूज़ कर सकें। In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Story: The Priceless Stone by James Rivayo. One day, a young boy asked his father, "What is the value of his life? What is the value of his life?" Instead of answering, father told his son to take this stone and go sell it at the market. If anybody asks the price of the stone, raise 2 fingers and don't say anything. Boy then went to the market and a woman asked, "How much is this rock? I want to put it in my garden." Boy did not say anything and raised 2 fingers. And the woman said, $2, I will take it. Boy then went home and told his father, "A woman wants to buy this rock in $2. Father then said, "Son, I want you to take this stone in a museum. If anyone wants to buy it, don't say a word, just put up 2 fingers." Boy then went to a museum and a man wanted to buy it. The boy did not say a word, just he put up his 2 fingers. The man said, $200, I'll take it. The boy was shocked. $200? The boy was shocked and went running home. "Father, a man wanted to buy this rock in $200. His father then said, "Son, the last place I want you to take this rock is to a precious stone store. Show it to the owner, and if he asks its price, just put up your 2 fingers." The boy then went to a precious stone store and he showed the rock to the owner. The owner then said, "Where did you find this stone? It is one of the most rarest stone of the world. I must have it. How much would you sell it for?" The boy put up 2 fingers and the man said, "I'll take it for $200,000. $200,000! The boy, not knowing what to say, ran home to his father. "Father, there is a man who wanted to buy the stone in $200,000. Father then said, "Son, do you know the value of your life now? You see, it does not matter where you come from, where you were born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people who surround yourself with, and how you choose to carry yourself. You may have lived your whole life thinking you were a $2 stone, or you may have lived your whole life surrounded by people that saw your worth only for $2. But everybody have a diamond inside of them, and we can choose to surround ourselves with people that see our value and see our diamond inside of us. We can choose to put ourselves in a market or choose to put ourselves in a precious stone store, and we can also choose to see the value of other people. We can help other people and see the diamond inside of them. Choose the people you surround yourself with wisely. That can make all the difference in your life. Thank you so much. कहा कि किस तरह की एनिमेशंस लगी हुई हैं। अब मैं आपको उसका मेथड बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये ऑप्शन आ रहा है साउंड का। अब ये एक स्लाइड है, इस पे साउंड की इंसर्शन किस तरह से मैंने की हुई है या किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, इसमें जाएंगे, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑडियो ऑन माय पीसी, इस पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपके पास जितने भी कंप्यूटर में ऑडियो मौजूद हैं उनमें से कोई भी एक आपने इंसर्ट करना है। जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन है या जिस तरह की प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, हैप्पी है, इमोशनल है, या फिर किस तरह की उसकी फ़ीलिंग्स हैं, उस तरह का आप म्यूज़िक इंसर्ट करें, बैकग्राउंड म्यूज़िक। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, ये आइकन आ रहा है साउंड का। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जहाँ चाहे रख सकते हैं। और जब हम स्लाइड शो को रिकॉर्ड करेंगे तो हम यहाँ से हम प्ले का बटन दबाएंगे और यहाँ से हम साउंड को भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी आवाज़ में हमें साउंड चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे वो आइकन का ऑप्शन आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और बाद में जब हम रिकॉर्ड करेंगे स्लाइड शो को, मैं आपका सारी स्लाइड्स बनाने के बाद आपको तरीका बताऊंगी। उस तरह से आप साउंड को ऑन करके स्लाइड को रिकॉर्ड करेंगे और जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आप साथ साथ बोलेंगे और साउंड खुद ब खुद ही चलेगा, जिस तरह से स्लाइड चलेंगी। तो अब हम इसका मेथड देख लेते हैं कि हमने एनिमेटेड स्लाइड्स वो किस तरह से बनाई थी। यहाँ पे मैं एक और न्यू स्लाइड ले आती हूँ। हर स्लाइड के बाद मैं आपको एक न्यू स्लाइड पे प्रीवियस स्लाइड का बताऊँगी कि किस तरह से एनिमेशंस हमने यहाँ पे पेस्ट की थी। यहाँ पे मैं होम में जा रही हूँ और न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे, ये मेरे पास न्यू स्लाइड आ गई। ठीक है, सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। क्या, अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ पहले, फिर एनिमेशंस का आपको बताती हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको प्लेस करती हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में जाऊँगी एनिमेशंस के। यहाँ पे मेरे पास ये प्रीवियस स्लाइड है। यहाँ पे मेरे पास 3 एनिमेशंस की ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने इसको चेक करना है कि मैंने कौन कौन सी एनिमेशंस की ऑप्शंस लगाई हैं। तो मैं नंबर 1 पे क्लिक करके एनिमेशंस में जाती हूँ। ये मुझे पता लग रहा है कि फ्लाई इन वाला सबसे पहले लगा हुआ है एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे जाके जो मैंने आपको बनाना सीखा, एनिमेशंस में जाके फ्लाई इन का फर्स्ट पे लगा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाली मैंने कौन सी लगाई हुई है, सेकंड पे क्लिक करके एनिमेशंस में जाते हैं, मैंने लाइंस वाली लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं आपको बताती हूँ, इस पर क्लिक किया, एनिमेशंस में जाएंगे। अब हम यहाँ से नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम ऐड एनिमेशन में जाएंगे। अगर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो पहली वाली चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम सेकंड एनिमेशन लगा रहे हैं। तो ऐड एनिमेशन में जाएंगे। ऐड एनिमेशन में गए, कौन सी लगी हुई थी, लाइन वाली। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमेशंस मिल रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ मोर मोशन पाथ्स। मोर मोशन पाथ्स में मैं गई, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। ये देखें, डायगनल, अप, राइट, डाउन, राइट। मैंने राइट में लेके जाना है इस पिक्चर को, तो मैं राइट पे क्लिक करूँगी। ये देखें, इस तरह से जाएगी पिक्चर। मैं ओके का बटन क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, ये दरमियान तक जा रही है। आप इसको ये रेड वाले ये गोल, ये जो सर्कल आ रहा है छोटा सा रेड कलर का, इससे आप पकड़ के इसकी डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हो गई। थर्ड वाली देख लेते हैं कौन सी एनिमेशन मैंने लगाई हुई है। यहाँ पे स्प्लिट एनिमेशन मैंने लगाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके एनिमेशन पे क्लिक करके ऐड एनिमेशन में दोबारा जाएंगे और स्प्लिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल सेम ऐसी ही स्लाइड प्रिपेयर हो गई। ठीक है, मैं अब ऊपर वाली क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि हमने बिल्कुल वैसी ही बना ली है। ऊपर वाली कट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड है। अब इसको मैं दोबारा होम में जाके न्यू स्लाइड ओपन कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी, पहले सबसे तो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास स्टोन की ऑप्शन है, ये मैंने मॉडल इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ इंसर्शन के ऑप्शन में, 3D मॉडल्स में, इंसर्ट कर दिया। ये हमारे पास स्टोन इंसर्ट हो गया। हम इसे छोटा कर लेते हैं, हमने जिस साइड को मूव करना है। अब ये पिक्चर नहीं है, ये 3D मॉडल है। तो हम इस पे देख लेते हैं कौन कौन सी एनिमेशन हमने लगाई हुई है। ये लगी हुई है अराइव की। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं, इस पे अराइव की लगा देते हैं एनिमेशन। वी विल गो टू एनिमेशन फर्स्ट। क्योंकि ये 3D मॉडल है तो यहाँ पे डिफरेंट अराइव की ऑप्शंस आ रही हैं जो कि पिक्चर में नहीं होती। तो ये अराइव का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब नंबर सेकंड वाला जो है ना, वो मैंने मार्केट पे लगाया हुआ है। ठीक है, मार्केट पे लगा हुआ है
और मार्केट पे अपीयर का लगा हुआ है। तो मार्केट की फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एनिमेशन में जाते हैं और इस पर एनिमेशन लगा देते हैं अपीयर की। ठीक है, नंबर 2 एनिमेशन लग गई। अब आगे सारी एनिमेशन हमारी स्टोन पे हैं क्योंकि स्टोन ने मार्केट की तरफ जाना है। तो नंबर 3 पे एनिमेशन कौन सी लगी हुई है, लाइन की। नंबर 4 पे कौन सी लगी हुई है, हम सारी एक ही दफ़ा देख लेते हैं। रिजॉल्व आउट, पहले हम ये कर लेते हैं। ठीक है, जाएंगे हम एनिमेशंस में, इधर नहीं क्लिक करना हमने, ऐड एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ पे मोशन पाथ्स में जाके दोबारा हम लाइन राइट वाला क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसे थोड़ा सा इधर लेके आना है, मार्केट के पास। ठीक है, उसके बाद डिज़ोल्व आउट की ऑप्शन है, एनिमेशन में जाके ऐड एनिमेशन, डिज़ोल्व आउट। अब यहाँ पे एग्ज़िट इफ़ेक्ट्स हैं, मोर एग्ज़िट इफ़ेक्ट्स में जाके डिज़ोल्व आउट के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4th एनिमेशन भी लग गई। 5th एनिमेशन हमारी कौन सी है, चेक कर लेते हैं। फिर अराइव की है। ठीक है, तो दोबारा जाके एनिमेशन में ऐड एनिमेशन, अराइव, ये हमारा इसका भी काम हो गया। तो अब हैंड का 3D मॉडल मैंने लगाना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी इंसर्शन के ऑप्शन में जाके 3D मॉडल में ऊपर डायरेक्ट लिख दूँगी हैंड। तो हैंड्स के डिफरेंट ऑप्शंस में से मैंने 2 फिंगर्स वाला हैंड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इसको मैंने अपनी न्यू स्लाइड में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में मैंने यहाँ पे 2 एनिमेशंस लगाई हुई है हैंड के ऊपर। नंबर 1 पे मैंने लगाई हुई है अराइव की, और नंबर 2 पे मैंने लगाई हुई है टर्न अराउंड की। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, आपको लगा के दिखाती हूँ अपनी न्यू स्लाइड पे। ये मैं जा रही हूँ एनिमेशन में। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लगाऊंगी अराइव की, उसके बाद मैं जाऊंगी दोबारा से हैंड पे और जाऊंगी एनिमेशन में, ऐड एनिमेशन, टर्न अराउंड की, जंप एंड टर्न। तो ये वाली स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब मैं ऊपर वाली इसकी कट कर देती हूँ। ये वाली स्लाइड ऊपर वाली मैंने कट कर दी। ओके, अब ये वाली स्लाइड है, अब इसको बनाना है हम लोगों ने। इंसर्शन के ऑप्शन में, होम के ऑप्शन में जाके न्यू स्लाइड को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट वगैरह सारे टेक्स्ट वगैरह पेस्ट करके मैं आपको मिलती हूँ। ओके, तो ये हमारी प्रीवियस स्लाइड है, इसके मुताबिक मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें पेस्ट कर ली हैं। अब बस एनिमेशंस हमने लगानी है। ठीक है, तो इसके हैंड में मैंने स्टोन रखा हुआ है। ठीक है, इसके हैंड में मैंने नहीं रखा, अगर आप चाहें तो आप रख लें। ठीक है, ओके, अब हम एनिमेशंस लगा लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने स्लाइड शो मैंने जब क्या कहते हैं प्ले किया था, तो बॉय जो है वो मार्केट तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे वुमेन पूछेगी। तो अब यहाँ पे हम इसी तरतीब से यहाँ पे एनिमेशंस लगा लेते हैं जिस तरतीब से इस पर लगी हुई हैं। बॉय पे क्लिक करके जाएंगे एनिमेशंस में। सबसे पहले तो हम अपीयर का लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐड एनिमेशन में जाएंगे। ऐड एनिमेशन में जाके हम यहाँ पे मोशन पाथ्स में जाके राइट का लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, राइट का लगा दिया हमने। तो इसके मुताबिक ही हमने सेट कर दिया। अब जो है, अब हम मार्केट को अराइव करेंगे। तो मार्केट में अब क्या, एनिमेशन में जाके मार्केट को अपीयर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट को हम स्प्लिट कर देते हैं। ऐड एनिमेशन में जाके स्प्लिट कर दिया हमने मार्केट को। ठीक है, तो ये इस पे भी एनिमेशन लग गई। उसके बाद ये वाली पिक्चर हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं ये वाली पिक्चर। अब वुमेन ने पूछना है, तो अब यहाँ पे हम एनिमेशन में जाके इस पर भी पहले अपीयर की लगा देते हैं। उसके बाद हम ऐड एनिमेशन में जाके व्हील शेप या रैंडम बार्स जो भी आप चाहें लगा लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे रॉक है। ठीक है, यहाँ पे रॉक पे लगा लेते हैं एनिमेशन। हाउ मच इज़ दिस रॉक। ठीक है, अब ये इस रॉक ने इस गार्डन में जाना है। ठीक है, रॉक पे क्लिक किया,
एनिमेशन में जाएंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे मोशन पाथ्स में चले जाते हैं, ठीक है। डायगोनल डाउन पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो ये अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है, गार्डन के पास। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये जो रेड कलर का आ रहा है इससे हम सेट कर लेते हैं। और ये क्या कहते हैं, गार्डन जो है ये अराइव होगा। एनिमेशंस में जाके, गार्डन में हम एनिमेशंस में जाके अपीयर का ऑप्शन कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब ये वाला सारा सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे उसने जब पूछना है तो उसने 2 फिंगर्स रेज़ करनी है, तो 2 फिंगर्स पे एनिमेशन लगा देते हैं। पहले तो अपीयर की, उसके बाद ऐड एनिमेशन में जाके स्वेड लगा दी, ठीक है। ये वाली एनिमेशन हमने लगा दी। तो ये भी हमारी स्लाइड जो है ये प्रिपेयर हो गई। हम ऊपर वाली स्लाइड को कट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाली स्लाइड को मैंने कट कर दिया। अब ये वाली स्लाइड ही हम स्लाइड शो में प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ये वाली स्लाइड है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही हम एनिमेशंस वगैरह इंसर्ट कर देंगे। होम के ऑप्शन में जाएंगे, न्यू स्लाइड, टेक्स्ट वगैरह कॉपी करके फिर आपको मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने पिछले स्लाइड जैसे बिल्कुल ही टेक्स्ट और पिक्चर्स पेस्ट कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमेशंस कौन कौन सी लगी हुई हैं। ऐसे ही डायरेक्ट एनिमेशन में जाके हम चेक करते जाएंगे और एनिमेशंस लगाते जाएंगे, ठीक है। अब बॉय ने मार्केट की तरफ मूव करना है। सॉरी, ये तो हम लोगों ने बना ली थी, ये वाली है स्लाइड। बॉय ने यहाँ पे मेन काम किया है, बॉय ने म्यूज़ियम जाना है, ठीक है। म्यूज़ियम जाना है और उधर एक उसे मैन मिलेगा जिसे वो रॉक के बारे में बताएगा और फिर वो 2 फिंगर्स पुट करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही एनिमेशंस लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इस पर कोई एनिमेशन हम नहीं लगाएंगे, ये वैसे क्या वैसे ही स्टोन रहेगा। इस पर नंबर 1 एनिमेशन हमने लगाई हुई है, अपीयर की लगा देते हैं हम। इस पर नंबर 1 एनिमेशन अपीयर की लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो बॉय है इसने मूव करना है। एनिमेशंस में जाके पहले तो हम अपीयर लगाएंगे, ऐड एनिमेशंस में जाके स्वेड लगा देते हैं। वहाँ पे मैंने मॉडल अटैच किया हुआ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कॉपी किया, तो इसीलिए ये स्वेड जो है वो 3D मॉडल टाइप नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं दोबारा एनिमेशंस में जाके लाइन वाली एनिमेशन पकड़ लेती हूँ। ऐड एनिमेशन में जाके लाइन, मोर मोशन पाथ्स में जाके ये हमारे पास आ रहा है राइट लाइन, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे जाएगा म्यूज़ियम, ठीक है। ये म्यूज़ियम आ रहा है। अब ये तो हो गया ना। अब म्यूज़ियम को हमने अपीयर करवाना है, तो एनिमेशंस में जाके फिर हम अपीयर के ऑप्शन को दबा देते हैं। इसी तरह से अब मैन उसे नज़र आएगा तो मैन को हम अपीयर करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐड एनिमेशन में चले जाते हैं, मैन को फेड करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बॉय जो है एनिमेशंस में जाके सबसे पहले अपीयर करवाते हैं। उसके बाद हम बॉय को बस अपीयर ही करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 फिंगर्स का ऑप्शन आ रहा है। एनिमेशंस में जाके पहले तो अपीयर करवाते हैं जब वो 2 फिंगर्स रेज़ करेगा। उसके बाद ऐड एनिमेशन में जाके कुछ भी क्लिक कर लें, रैंडम बार्स में क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है, द मैन सेड $200 आई विल टेक इट। तो यहाँ पे जो एनिमेशन लगी पहले हम उससे क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पीछे से कॉपी किया है तो ये एनिमेशन भी कॉपी हो गई हैं। तो पहले मैं इसे क्रॉस कर लेती हूँ, ठीक है। एनिमेशंस में जाके नन कर देंगे। उसके बाद हम इस पर एनिमेशन लगा लेते हैं, ठीक है। एनिमेशंस में जाएंगे और फ्लाइंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली स्लाइड भी प्रिपेयर हो गई बिल्कुल। हम ऊपर वाली स्लाइड जो है वो कैंसिल कर देते हैं। नीचे वाली स्लाइड हमारी बिल्कुल ऐसी ही प्रिपेयर हो गई है, तो ऊपर वाली मैं आपको कट कर देती हूँ, ठीक है। ऊपर वाली हमारे पास स्लाइड कट हो गई है। अब नीचे वाली भी ऐसी ही स्लाइड है। मैं श्योर हूँ कि अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने एनिमेशंस की नंबरिंग देखें। अब एक स्लाइड है तो उसके ऊपर जो नंबर 1 पे आप एनिमेशन लगाएंगे वो सबसे पहले आएगी। ये देखें, अब मैंने टेक्स्ट पे नंबर 1 एनिमेशन लगाई हुई है, तो यहाँ पे 1 ऑप्शन आ रहा है। 2, 3 इस तरह से नंबरिंग आएगी। जिस तरह से अगर आपने नंबर 7 वाली एनिमेशन को क्रॉस करना है, कट करना है, तो जब नंबर 7 वाली को कट करेंगे तो उसका स्लाइड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, जबकि स्लाइड पे एनिमेशंस उसी के लिहाज से तरतीब में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम एनिमेशंस को सिलेक्ट करते जाएंगे और जिस तरह हम अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे तो स्लाइड शो हम प्रिपेयर करेंगे। अब
इसी तरह से आप लोग ये वाली स्लाइड भी देख लीजिएगा, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह से हम लोगों ने एनिमेशंस को ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस स्लाइड में मैंने वही मोर मोशन पार्ट्स में जाके ये वाली एनिमेशन को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आप लोग भी किसी तरह की भी एनिमेशंस, बहुत सारी एनिमेशंस के ऑप्शन होते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ओके, तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्लाइड शो वगैरह हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने स्लाइड शो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ या फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एनिमेटेड नहीं है, आपने स्लाइड शो नहीं रिकॉर्ड किया हुआ या फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे जाएंगे आप लोग स्लाइड शो के ऑप्शन में। तो आपको किसी भी स्लाइड कहीं से भी आप लोगों ने शो करवाना है तो फ्रॉम बिगनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड आप स्लाइड शो को प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर नहीं तो अगर बिगनिंग से करना है तो ये ऑप्शन छोटा सा आ रहा है ऊपर, बाज़ विंडोज़ में क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता ऊपर, हम स्लाइड शो के ऑप्शन में डायरेक्ट जाके क्लिक कर सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फ्रॉम बिगनिंग मैंने अगर सेलेक्ट किया है तो ये मैंने आपके पास क्लिक किया है तो बिगनिंग से मेरे पास स्लाइड आ गई है। अब मैं डायरेक्शन की से राइट वाली डायरेक्शन की को क्लिक कर रही हूँ और आगे आगे इस तरह से ये स्लाइड्स मूव हो रही हैं, बस मैं क्लिक करते जा रही हूँ और मूव होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से नहीं करना चाहते, मीन्स आप लोग बोलेंगे तो स्लाइड बाद में चेंज होगी, तो आप लोगों को इस चीज़ का डर है, तो आप लोग इस स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने एनिमेशंस नहीं लगाई हुई तो आप लोग इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, मींस आप राइट क्लिक को डायरेक्ट क्लिक करके प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एनिमेशंस लगाई हुई हैं या फिर साउंड लगाया हुआ है तो आपको चाहिए कि पहले आप उसे रिकॉर्ड कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्लाइड शो का, तो स्लाइड शो में यहाँ पे रिकॉर्ड स्लाइड शो की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड स्लाइड शो के ऑप्शन को क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्ड स्लाइड शो के ऑप्शन को क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब हर स्लाइड का अलग नीचे यहाँ पे टाइम चल रहा है, ठीक है। जितनी मैं स्लाइड शो को टाइम देना चाहती हूँ उतना टाइम चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स पॉइंटर्स के आ रहे हैं ताकि आप पॉइंटर्स को भी इस तरह से रोटेट करते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऊपर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्ड के बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगी 3, 2, 1 और स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइड का मैंने इतना ही, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना ही टाइम देना है, सेकेंड स्लाइड को मैंने इतना ही टाइम देना है। मैं साथ साथ डायरेक्शन की इसको क्लिक करती जाऊंगी और साथ साथ मुंह में बोलती जाऊंगी टेक्स्ट को कि जिस तरह से मेरी जो है वो मोशन होता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। मैं अपनी वर्डिंग पे गौर करूंगी कि मुझे कब ये वाली पिक्चर दिखानी है, मुझे कब ये वाला मॉडल दिखाना है, और इस तरह से मैं इसको रिकॉर्ड करती जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिकॉर्ड करती जाऊंगी। तो जब मैं एंड पे स्लाइड शो में प्रिपेयर करूंगी तो बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ ये चलेगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज ये चलता जाएगा। हर स्लाइड का अलग टाइम होता है नीचे। अगर आप किसी स्लाइड की अगर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं सही हुई तो आप दोबारा से यहीं से खोल के उसी स्लाइड की टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना लिया है सारा, मींस मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप के बटन को क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ESC के बटन को दबा देती हूँ। अब ये मेरे पास स्लाइड शोज़ रिकॉर्ड हो गए हैं। अब जब मैं जाऊँगी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग स्लाइड शो में तो मुझे डायरेक्शन की को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ बोलती जाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में आप साउंड को भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें खुद ही चल रहा है आगे आगे। तो इसी तरह अगर आप मैं आपको साउंड का बताना भूल गई। इसी तरह आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, साउंड अगर आपने डाली हुई है स्लाइड शो के पीछे, तो यहाँ पे देखें मेरे पास साउंड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको क्लिक करके साउंड को क्लिक करके दबा दूँगी, ठीक है। तो साउंड बस मैंने एक क्लिक ही करना है। तो पहले मैं साउंड को एडजस्ट कर लूँगी, रिकॉर्डिंग करने से पहले साउंड को एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगी डायरेक्ट। तो मेरे पास जितनी मैंने आवाज़ वहाँ पे साउंड की बैकग्राउंड म्यूज़िक की लगाई होगी उतनी ही यहाँ पे आगे चल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और इस तरह से आप लोग प्रेजेंट कर सकेंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो बस ये वीडियो का एंड था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इस तरह से मैं सोचूंगी कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और मुझे डोनेट ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।